18. Landlord's responsibility. Every landlord shall carry out the repairs which he is bound under any law, contract, or custom to make to a building in possession of a tenant. Explanation. In this subsection, repairs include annual whitewashing, recoloring, and periodical repairs. If the landlord fails to carry out whitewashing once in every year, recoloring once in 3 years, and periodical repairs which he is bound to make, the tenant may by notice require him to carry out the same within 1 month from the date of service of the notice, and on the landlord's failure to do so within the said period, the tenant may himself carry out the same at a cost not exceeding 1 month's rent for the building and deduct such cost from the rent. तो दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि लैंडलॉर्ड को जो है 1 साल में वाइट वॉशिंग करवाना है और प्रत्येक 3 साल में कलरिंग और रिपेयरिंग पीरियोडिकल रिपेयर्स करवाना है। 3 साल में रिकलरिंग करवाना है और 1 साल में वाइट वॉशिंग करवाना है। और इसके लिए जो है लैंडलॉर्ड जो है बाउंड है, बाध्य है। इसके लिए टेनेंट जो है नोटिस भेज सकता है लैंडलॉर्ड को कि भाई आप वाइट वॉशिंग कर दो या रिकलरिंग कर दो, ठीक है। और उस नोटिस के 1 मंथ के अंदर में ये करवाना रहता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो टेनेंट जो है खुद से वो करवा सकता है वाइट वॉशिंग एंड कलरिंग, लेकिन एट द कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग 1 month's rent, not exceeding 1 month's rent for the building and deduct such cost from the rent। तो 1 महीने का जितना किराया है उसी कॉस्टिंग के हिसाब से जो है रेंट के हिसाब से 1 मंथ का जितना रेंट है उतना ही अमाउंट तक का वो वाइट वॉशिंग या कलरिंग वगैरह करवा सकता है और वो नेक्स्ट मंथ में उसको डिडक्ट कर लेगा। अब सबसेक्शन 3 देखते हैं। इफ़ द लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट्स to carry out repairs other than those referred in subsection 1, which he is bound to make, the controller shall, on an application by the tenant, which shall specify the approximate cost of such repairs, cause a notice to be served on the landlord to appear and show cause within such time as may be fixed in the notice। अगर लैंडलॉर्ड जो है वो रिपेयर नहीं कराता है अदर देन दोज रेफर्ड इन सबसेक्शन, यानी कि वो वाइट वॉशिंग ये वाली रिपेयर्स इंक्लूड एनुअल वाइट वॉशिंग, अगर वो वाइट वॉशिंग या रिकलरिंग वगैरह अगर नहीं कराता है तो टेनेंट जो है एक एप्लीकेशन लगाएगा कंट्रोलर के पास में, उसमें एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स का वो डाटा देगा। फिर जो है कंट्रोलर जो है नोटिस भेजेगा इसको लैंडलॉर्ड को और कहेगा कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में आप जो है आप अपीयर होइए और शो काउज दीजिए, ठीक है। सबसेक्शन 3, इफ़ द लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट्स टू कैरी आउट रिपेयर्स अदर देन दोज रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 विच इज बाउंड टू मेक, द कंट्रोलर शैल ऑन एन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट विच शैल स्पेसिफाई द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर्स, cause a notice to be served on the landlord to appear and show cause within such time as may be fixed in the notice, ठीक है। ये तो मैंने पहले बता दिया। If the landlord does not appear in obedience to the notice, or if he appears but fails to satisfy the controller as to why he should not be directed to carry out the repairs or such of them as he finds the landlord is bound to make, the controller shall, after making such further inquiry as may be necessary, direct him to carry out the same within a time to be fixed, and on the landlord's failure to comply with such direction, the controller may permit the tenant to carry out such repairs at a cost not exceeding such amount as may be specified in the order, and to recover such cost from the landlord. It shall thereafter be lawful for the tenant to carry out such repairs and to deduct the cost thereof from the rent or recover it otherwise from the landlord as if it were a debt due to him by the landlord, provided that if the controller is satisfied that the repairs involved were due to negligence of the tenant, he will order the tenant to make such repairs and the cost of repairs shall be borne by the tenant and the same
shall not be recoverable from the landlord by deduction from the rent. यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि अगर लैंडलॉर्ड अपीयर नहीं होता है, उसको नोटिस भेजा गया था कंट्रोलर के द्वारा, या फिर आता है अपीयर होता है लेकिन वो कंट्रोलर को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, हाँ, तो वैसे सिनारियो में जो है द लैंडलॉर्ड इज़ बाउंड टू मेक, ठीक है, द कंट्रोलर से आफ्टर मेकिंग फर्दर इंक्वायरी, कंट्रोलर जो है फर्दर इंक्वायरी करेगा, ठीक है, और डायरेक्ट करेगा कि भाई आप जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि उसके अंदर में आप कीजिए। हाँ, अगर लैंडलॉर्ड उसके बावजूद भी नहीं करता है, ठीक है, उस डायरेक्शन का कंप्लाई नहीं करता है, तो फिर जो है कंट्रोलर जो है टेनेंट को बोलेगा कि आप अपने पैसे से वो रिपेयर कराएं, ठीक है, और वो अमाउंट जो है जो कंट्रोलर फिक्स कर देगा उतने के उसी अमाउंट में आपको करवाना है। कंट्रोलर फिक्स करेगा कि हाँ आप जो है जैसे 50,000 है या 1 लाख है, उतना अगर वो फिक्स कर दिया है तो उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता है टेनेंट रिपेयरिंग कराने के कॉस्ट में। और वो जो है वो किससे रिकवर करेगा, वो लैंडलॉर्ड से बाद में वो रिकवर कर सकता है, और वो रेंट में से भी काट सकता है या फिर अदरवाइज भी वो लैंडलॉर्ड से क्लेम कर सकता है, जैसे कि वो एज अ डेब्ट हो ड्यू है ना, डेब्ट ड्यू हो, उस तरह से डेट के रूप में जो है वो रिकवर कर सकता है लैंडलॉर्ड से। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रख दिया है, प्रोवाइडेड दैट, कि अगर कंट्रोलर को लगता है कि रिपेयर्स जो करवाना है वो टेनेंट के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में वो टेनेंट को बोलेगा कि आप रिपेयर करो और रिपेयरिंग का जो भी कॉस्ट है वो आपको बियर करना पड़ेगा, और वो जो है लैंडलॉर्ड से रिकवर नहीं किया जाएगा, ठीक है, और ना ही उसके रेंट से डिडक्ट करना है, वो टेनेंट को बियर करना होगा। अगर टेनेंट ने बिल्डिंग का कोई डैमेज कर दिया है, फ्लैट का कोई डैमेज कर दिया है, तो टेनेंट को भरना पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी। सेक्शन 17, लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफेयर विद एमिनिटीज़ इंजॉयड बाय द टेनेंट। इससे पहले एमिनिटीज़ का मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में यहाँ दिया हुआ है एमिनिटीज़। In this section, amenities include supply of water, electricity light in passages and on staircases, lifts and conservancy और sanitary services। तो ये amenities का मतलब हो गया। इसमें supply of water है, electricity है, electricity lights in passages हो गया, on staircase हो गया, lifts and conservancy और sanitary services हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसेक्शन 1 में क्या कहते हैं, नो लैंडलॉर्ड शेल विदाउट जस्ट और सफिशिएंट काउज कट ऑफ और विथ होल्ड एनी ऑफ द एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। ठीक है, कोई भी लैंडलॉर्ड जो है बिना जस्ट और सफिशिएंट काउज का कोई भी जो है एमिनिटीज को कट ऑफ नहीं करेगा, विथ होल्ड नहीं करेगा जो इन्जॉय कर रहा है टेनेंट के द्वारा। फिर सेकंड सबसेक्शन 2 में ये कह रहा है कि अ टेनेंट इन पोजीशन ऑफ ए बिल्डिंग में इफ द लैंडलॉर्ड हैज कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 make an application to the control complaining of such contravention and may restore any of the amenities on his own responsibility pending consideration of his application by the controller। अगर इस तरह से अगर लैंडलॉर्ड मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी काट दिया है, वाटर काट दिया है, जो सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस को अगर वायलेट किया है, कहने का मतलब वही है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काट दिया है, तो वो क्या कर सकता है, एक एप्लीकेशन कंट्रोलर को लगा सकता है, एंड मे रिस्टोर एनी ऑफ द एमिनिटीज ऑन हिज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अपने से खुद से जो है वो फिर से ठीक करवा सकता है, वो फिर से जो लाइन वाइन है या इलेक्ट्रिसिटी अपने से फिर से ठीक करवा सकता है, वो पेंडिंग है अभी कंट्रोलर के पास। ठीक है, सबसेक्शन 3 में क्या कहता है कि इफ़ द कंट्रोलर ऑन इंक्वायरी सर्टिफाइज दैट द लैंडलॉर्ड हैज़ विदाउट जस्ट सफिशिएंट काउज कट ऑफ और विथ होल्ड एनी ऑफ द एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी और एट एनी टाइम देयर आफ्टर he shall, in case such amenity has already been restored by the tenant, make an order directing the landlord to pay to the tenant the cost of such restoration as determined by him within such time as may be specified in the order, and in any other case direct the landlord to restore such amenity at such cost and within such time as may be determined by him, and also that in case the landlord fails to do so, the amenity may be restored by the tenant at his own cost and such amount
as may be specified in the order may be recovered by the tenant as the cost of restoration, either by adjustment towards the rent payable by him or as if the amount were a debt due to him by the landlord. तो इसमें ये कह रहा है कि दोस्तों अगर कंट्रोलर को रखता है, ये सेटिस्फाइड है कि लैंडलॉर्ड जो है विदाउट एनी जस्ट और सफिशिएंट कॉज का जो है कट ऑफ कर दिया है, विथ होल्ड कर दिया है कोई भी एमिनिटीज जो टेनेंट इंजॉय कर रहा था, तो वैसे सिनारियो में जो है अगर टेनेंट ने खुद उसको रिस्टोर कर लिया है अपने पैसे से, अपने खर्चे से, तो ये जो है फिर जो है तो वैसे सिनेरियो में जो है क्या होगा कि रिस्टोरेशन जो खुद से कर लिया है टेनेंट ने, वो जो है लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा, ठीक है, और वो रेंट वेंट से वो काट सकता है। तो कंट्रोलर जो है लैंडलॉर्ड को जो है यहाँ पे दिया हुआ है, लैंडलॉर्ड को जो है डायरेक्ट करेगा कि भाई जो उन्होंने खर्चा किया है रिस्टोर करने में वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेकंड में ये है कि अगर टेनेंट ने अगर रिस्टोर नहीं किया है अभी तक, तो कंट्रोलर जो है लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट करेगा कि भाई वो जो भी अपने लाइट वाइट काटा था, पानी वानी डिस्कनेक्ट किया था जो है, वो आप फिर से रिस्टोर कीजिए, ठीक है। अगर वो लैंडलॉर्ड इसके बावजूद भी नहीं करता है, डायरेक्ट करने के बावजूद भी, तो वो टेनेंट को कहेगा कि भाई आप खुद से कर लो और ये जो है आप उसके रेंट में से काट लेना। अगर इनके बावजूद भी अगर वो रेंट में से नहीं उतना अमाउंट नहीं मिल पाएगा, तो एज ए जो है डेट जो है रिकवर किया जाएगा लैंडलॉर्ड से, यानी कि डेट एज ए सिविल डेट जैसा अगर रिकवर करेगा तो समझ लीजिए कि ये एक सिविल मैटर हो जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 18 ड्यूटीज़ ऑफ टेनेंट, क्या क्या ड्यूटीज़ है टेनेंट का। सबसेक्शन 1 कह रहा है एवरी टेनेंट शैल बी बाउंड टू कीप द बिल्डिंग इन गुड एंड tenantable repairs in relation to water taps, water closets, bathtubs, geysers, kitchen fixtures, minor electric equipment, glass panel for doors and windows and other minor repairable items। तो टेनेंट को जो है टेनेंटेबल कंडीशन में रखना है, बिल्डिंग को अच्छे कंडीशन में रखना है, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 में आते हैं, where any repairs in relation to a matter falling under subsection 1 without which the building is not habitable or usable and the tenant neglects or fails to make them within a period of 2 months after notice in writing, the landlord may apply to the controller for permission to make such repairs himself and may submit to the controller an estimate of the cost of such repairs, and thereupon the controller may, after giving the tenant an opportunity of being heard and after considering such estimate of the cost and making such inquiries as he may consider necessary, by an order in writing, permit the landlord to make such repairs at such cost as may be specified in the order, and it shall thereafter be lawful for the landlord to make such repairs himself and to recover the cost of such repairs, which shall in no case exceed the amount so specified from the tenant। यहाँ पर क्या है कि लैंडलॉर्ड जो है इसको जो है नोटिस देगा टेनेंट को कि भैया आपने जो बिल्डिंग यूज किया है वेयर एंड टियर हो गया है, बिल्कुल अब जो है हैबिटेबल कंडीशन पे नहीं है या उसको यूजेबल कंडीशन में नहीं है, तो उसको जो है नोटिस दे दिया जाएगा कि भाई आप इसको ठीक ठाक कराओ। अगर ऐसा नोटिस के 2 महीने के अंदर में वो टेनेंट अगर नहीं करता है, तो फिर लैंडलॉर्ड जो है कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन देगा, ठीक है, कि जो है खुद से वो रिपेयर करना चाहता है और एक जो है एस्टिमेट जो है दे देगा कॉस्ट का कि उस रिपेयरिंग में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलर जो है उसको टेनेंट को बुलाएगा, उसे सुना जाएगा और सुनने के बाद जो है वो कंट्रोलर जो है लैंडलॉर्ड को कहेगा कि भाई हाँ अब तुम उसमें रिपेयरिंग करा सकते हो, जो भी है वेयर एंड टियर जो भी कुछ हुआ है, डैमेज हुआ है, आप करा लेना। और आपको जो है यानी कि लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट से फिर बाद में रिकवर करेगा उस अमाउंट को, ठीक है।
to recover the cost of such repairs, or we shall in no case exceed the amount so specified। जो कंट्रोलर उस ऑर्डर में लिखा हुआ रहेगा उस अमाउंट उससे ज़्यादा का रिपेयरिंग वो नहीं करा सकता है। Subsection 3. The tenant shall make good all damages caused to the premises by his negligence within 3 months of being informed in writing to do so by the landlord, failing which the landlord may apply to the controller for permission to make good the said damages, and the controller shall decide the matter in the manner provided in subsection 2। भाई अब लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट को नोटिस देगा कि भाई अपने जो भी रहने की वजह से अपने मेरे बिल्डिंग का अपने मेरे घर का जो भी डैमेज किया है, जो भी मेरे प्रीमाइसेस का डैमेज किया है, आप उसको ठीक कराइए। ठीक है, 3 महीने के अंदर में, उस नोटिस के 3 महीने के अंदर में कराना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है टेनेंट जो है, फिर लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन देगा, किसको, कंट्रोलर को देगा। ठीक है, और कंट्रोलर जो है उस मैटर को डील करेगा एज पर सबसेक्शन 2, इसके हिसाब से डील करेगा। सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो अभी हमने बोला उसके हिसाब से उस मैटर को डील करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसेक्शन 4। द टेनेंट शैल हैंड ओवर पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग ऑन टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी इन सेम कंडीशन एक्सेप्ट फॉर द नॉर्मल वियर एंड टियर एज इट was when handed over to him at the beginning of such tenancy, and in a case where certain damages have been caused, not being damages caused by force majeure, the tenant shall make good the damages caused to the building, failing which landlord may apply to the controller for permission to make good the said damages, and the controller shall decide the matter in the manner provided in subsection 2। इसमें क्या कह रहा है कि भाई हाँ, टेनेंट जो है टर्मिनेशन हो जाएगा जब टेनेंसी का, तो उसका पोजीशन जो है, बिल्डिंग का जो है पोजीशन जो है वापस कोई लैंडलॉर्ड को दे देगा। उसी कंडीशन में देना है जैसे कि लैंडलॉर्ड ने उसको दिया था, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल वेयर एंड टियर। नॉर्मल वेयर एंड टियर तो चलता है, ठीक है, लेकिन इन केस जो है in case where certain damages have been caused, not being damages caused by force majeure, the tenant shall make good the damages caused to the building, failing which landlord may apply to the controller। अगर कुछ टेनेंट ने कुछ डैमेज कर दिया है तो उसकी भरपाई करेगा, उसको खुद से करना है, ठीक कराएगा। ठीक है, वो डैमेज कैसा होना चाहिए, अगर उससे हुआ है कुछ, अगर लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस से हो गया। यहाँ फोर्स मेजरे मीन्स क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस की वजह से, जैसे भूकंप आ गई, अर्थक्वेक्स आ गया, आंधी तूफान की वजह से अगर कुछ डैमेज हो गया है बहुत मेजर, तो ये उसके लिए टेनेंट लायबल नहीं है। तो अगर लेकिन टेनेंट की कुछ की वजह से, कुछ नेग्लिजेंस की वजह से अगर डैमेज हो गया है तो उसको ठीक करवाना है, अदरवाइज नहीं तो वो लैंडलॉर्ड जो है कंट्रोलर को एप्लीकेशन लगाएगा, फिर वहाँ से जो है कंट्रोलर जो है डिसाइड करेगा मैटर को इन द सेम मैनर जैसे सब सेक्शन 2 में है, उसी तरह से डिसाइड करके इस मैटर को रिजॉल्व कर। सब सेक्शन 5। द टेनेंट शैल नॉट वेदर ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ टेनेंसी और देयर आफ्टर डिमोलिश एनी इम्प्रूवमेंट और ऑल्ट्रेशन कैरिड आउट बाई हिम in the building or remove any material used in such improvement or alteration other than any fixture of a removable nature without the permission of the landlord, failing which such demolition or alteration shall be deemed to be damage caused by such tenant under subsection 3 and shall be dealt with accordingly। हाँ तो भैया, अगर टेनेंट ने कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह किया था ड्यूरिंग सबसिस्टेंस ऑफ टेनेंसी या उसके बाद, तो वो उस इम्प्रूवमेंट को या ऑल्ट्रेशन को जो है अब छोड़ रहा है, तो ये नहीं कि उसको तोड़ दें। कुछ ईंटा वोटा लगाया था, जोड़ा वोड़ा था, ईंट वीट लगाई थी, तो उसको तोड़ के फिर, क्योंकि अब तो रहना नहीं है, चलो भाई तोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। हाँ, लेकिन अदर कोई फिक्चर्स वगैरह है जिसको ले जाए, जैसे पंखा है, एसी है, वो तो अपना ले ही जाएगा टेनेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा अगर कोई बिना परमिशन का लैंडलॉर्ड के विदाउट परमिशन के कुछ तोड़ता है किसी इम्प्रूवमेंट या ऑल्ट्रेशन को, तो फिर उसको डैमेज माना जाएगा
और जो है एज पर दी सब सेक्शन जो है इसको डील कर दिया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा, मैंने समझा दिया कौन कौन सा सेक्शन 16, 17, 18, सेक्शन 16, 17 और 18 जो है मैंने डील कर दिया है। और ये जुडिशरी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सेक्शन से ये तीनों पूछा हुआ भी है और पूछ भी सकता है आगे भी, इसीलिए थैंक यू सो मच।